This is the third week of June and GA plus ESI news है. So let's see क्या क्या है इसमें. पहला है वर्ल्ड सिकल सेल डे. द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज under the Ministry of Social Justice and Empowerment organized nationwide awareness programs on the occasion of World Sickle Cell Day. Bhagwan Birsa Munda Prize announced by the Ministry of Tribal Affairs for development of new drug for sickle cell disease with funding support up to 10 crore rupees. 10 करोड़ रुपीस का फंडिंग सपोर्ट मिलेगा फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग फॉर सिकल सेल डिजीज. ठीक है. भगवान बिरसा मुंडा प्राइज में अनाउंस किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. वो प्राइज दिया जाएगा जो कि सिकल सेल डिजीज के लिए जो डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग करेगा. ठीक है. फंडिंग सपोर्ट 10 करोड़ का मिलेगा. Center of Competence launched in 15 tertiary care hospitals, including AIMS, for state-of-the-art sickle cell disease diagnostics and treatment to be operational by November 2025. So Center of Competence is launched in 15 हॉस्पिटल समझ लो. ठीक है. 15 हॉस्पिटल में ये सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस लॉन्च हुआ इंक्लूडिंग एम्स. ठीक है. टू एलिमिनेट सिकल सेल डिजीज एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया बिफोर 2047, 2047 के पहले तक हटा दो. International Big Cat Alliance, the ratification enables IBCA to establish its headquarters and additional offices in India, with the Indian government recognizing IBCA's international legal personality. 2023 में लॉन्च हुआ था. सेफ टूरिज्म डेस्टिनेशन फॉर women project. The Minister of State for Women and Child Development reviewed the implementation of the safe tourism destination for women project in मध्य प्रदेश में अंडर द निर्भया फंड. ठीक है. सेफ टूरिज्म एंड डेस्टिनेशन वो है मध्य प्रदेश में किया गया है. Reviewed the implementation of the safe tourism destination for women project in Madhya Pradesh under the Nirbhaya Fund. Key highlights के launch body Madhya Pradesh Tourism Board under the Tourism Department of Government of Madhya Pradesh. Nodal Ministry Ministry of Women and Child Development. Take a launch body Madhya Pradesh Tourism Board under the Tourism Department of Government of Madhya Pradesh. Ministry of Women and Child Development इसका nodal ministry है. The project spans 50 tourist destinations across 33 districts of Madhya Pradesh. ठीक है. प्रोजेक्ट स्पैन करता है 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन अक्रॉस 33 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश. ठीक है. उसके बाद है जेंडर बजटिंग. The Ministry of Women and Child Development organized the first national consultation on gender budgeting and launched the Gender Budgeting Knowledge Hub portal. Ministry of Child and Ministry of Women and Child Development organized the first national consultation on gender budgeting and launched the General Budgeting Knowledge Hub portal. ठीक है. जनरल बजटिंग नॉलेज हब और डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ जेंडर बजटिंग इंफॉर्मेशन. ठीक है. ये जेंडर बजटिंग लॉन्च कब होता है? 2005-06 में. इनिशियल इंट्रोडक्शन एज अ फिजिकल रिपोर्टिंग टूल. तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ऑर्गेनाइज किया. ठीक है. ऑर्गेनाइज द फर्स्ट नेशनल कंसल्टेशन ऑन जेंडर बजटिंग, लॉन्च द जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल. India becoming an economic powerhouse. India became the fourth largest global economy in 2025. GDP जो growth है वो constant है 6.5%. Real GVA 6.4% and nominal 9.5%. Total exports rose 76% over the last decade. Services exports increased to $158 billion से $387 billion तक. ठीक है. तो टोटल एक्सपोर्ट 76% बढ़ गया है ओवर द लास्ट डेकेड एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट अभी $387 बिलियन है. ठीक है. हाईएस्ट एनुअल एफडीआई इनफ्लो ऑफ $84 84.84 बिलियन इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22. अभी सबसे ज़्यादा जो एफडीआई हमको आ रहा है वो सर्विसेज, उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में आ रहा है. ठीक है. टैक्स रेवेन्यू टैक्स टू जीडीपी इज प्रोजेक्टेड एट 12% फॉर FY26. शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का जो ग्रॉस एनपीए फेल टू 2.6% इन December 2024 विच इज 12-year लो. टारगेट है महाराष्ट्र एम्स टू डबल जीडीपी. ठीक है. फ्रॉम 500 बिलियन टू 1 ट्रिलियन डॉलर बाई 2030 एट अ 14% CAGR. 2030 तक अपना जो भी जीडीपी है वो डबल कर लेगा. ये एम है महाराष्ट्र का. ठीक है. ILO कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल हजार्ड्स इन द वर्किंग एनवायरनमेंट. तो 113th इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन जेनेवा फ्रॉम 2 to 13 June adopted the first ever international labor standards to prevent and protect worker from biological hazards in the workplace. ठीक है. 113th इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस held in Geneva from 2 to 13 June adopted the first ever international labor standards for
टू प्रिवेंट एंड प्रोटेक्ट वर्कर्स फ्रॉम बायोलॉजिकल हजार्ड्स इन द वर्क प्लेस। ठीक है, बायोलॉजिकल हजार्ड के लिए आईएलसी जो है, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस इन जेनेवा हुआ था। ठीक है। The Convention on Biological Hazards in the Working Environment was adopted as the first ever international level aimed at preventing exposure and protecting workers from biological hazards in the workplace. यही है वो। Bonn Climate Change Conference 2025, तो media technical meeting to shape the agenda and progress for the upcoming COP13 Belém, Brazil. Bonn Climate Change क्या है? कॉन्फ्रेंस। तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि मीडिया टेक्निकल मीटिंग होगा टू शेप द एजेंडा एंड प्रोग्रेस फॉर द अपकमिंग COP13 ब्राजील बेलेन में होगा। रिव्यू एंड प्रिपेयर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रीवियस COP डिसीजंस। ठीक है। अमिताभ कांत सर resignation as G20 Sherpa announced his resignation as India's G20 Sherpa and concluding a 45-year career in public service। ठीक है। फिर G20 ट्राइका क्या है? ब्राजील 2024 में था, इंडिया साउथ अफ्रीका था 2025 में, और से है 2026 में। तो इस साल है साउथ अफ्रीका, पिछले साल ब्राजील था। ब्राजील, साउथ अफ्रीका, और नेक्स्ट ईयर यूएसए। यूएसए छोड़ो, इस साल जो है वो है साउथ अफ्रीका, पिछले साल ब्राजील था। G20 मेंबर रिप्रेजेंट अराउंड 85% ऑफ द टोटल जीडीपी, ग्लोबल जीडीपी। G20 में रिप्रेजेंट अबाउट 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड, एंड टू थर्ड में जो पॉपुलेशन है वो भी G20 में के अंदर आता है। तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो G20 मेंबर रिप्रेजेंट अराउंड 85% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। ठीक है। और फास्टैग के लिए क्या है? द फास्टैग बेस्ड एनुअल पेज पास इज प्राइस एट 3000 एंड इज वैलिड फॉर 1 year और 200 हाईवे ट्रिप्स विच एवर कम्स फर्स्ट। इंडियन मनी इन स्विस बैंक्स, तो इंडियन फंड्स इन स्विस बैंक्स ट्रिपल्ड इन 2024 रीचिंग द जो भी फ्रैंक है 3.5 बिलियन। इंडियन फंड्स इन स्विस बैंक ट्रिपल्ड इन 2024। ओके। Indian funds in Swiss bank tripled in 2024, reaching the CHF 3.5 billion. Total Indian funds CHF 3.5 billion है, highest since 2021। टॉप कंट्रीज स्विस बैंक होल्डिंग्स में है कि यूके, यूएस, वेस्ट इंडीज। अदर टॉप कंट्रीज जर्मनी, फ्रांस, हांगकांग, लग्जमबर्ग, सिंगापुर, क्वींस एंड यूएई। तो यूके यूएस हो गया टॉप में, यूके यूएस, फिर वेस्ट इंडीज, उसके बाद आता है जर्मनी, फ्रांस। ठीक है। तो स्विस बैंक होल्डिंग में ये लोग हैं। इसमें ब्लैक मनी वगैरह नहीं रखा जाता। Clarify this should no clarify this fund should not be presumed illegal. That is it.